students, I will be talking about the pathophysiology and the principles of management of asthma. So I will be going briefly because I know there are many other talks to follow. तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि what are the symptoms that are suggestive of asthma. तो सबसे की जो चीज़ है that is the diagnosis. उसके अंदर सबसे important is the history. So what are the key features in the history? There is history of wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough. And typically these symptoms are variable. तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है? So the first and most important is the history of variable respiratory symptom. अब variable का क्या मतलब है? That these symptoms occur variably. इनकी जो frequency and intensity it does not remain the same. तो वो change होती रहती है. ठीक है? Symptom occur variably over time. Symptoms are often worse at the night time. Symptoms are often triggered by exercise and symptoms often appear or worsen with the viral infection. So this is the first important thing, the variable respiratory symptom. Then the second important is spirometry in asthma, but हम सब चूँकि जो है वो we are medical doctors, house of users हैं, medical students हैं, तो even medical students को हम लोग asthma में we give overview of the lung function testing. So what is the characteristic of asthma? That there is excessive variability in the lung function. तो ना सिर्फ symptoms जो हैं वो variable होते हैं, but the lung function is also variable. तो उसके अंदर there are different things. I am sure Dr. Kamran will be going through that. तो मैं उसकी ज़्यादा जो है वो details में नहीं जा रही. तो उसके भी 4-5 जो है वो पैरामीटर हैं. सबसे पहली चीज़ there is obstructive impairment in the respiratory function, then there is a positive bronchodilator response, and there is excessive variability in the peak expiratory flow as well. Along with that, if we start patient on the inhaled corticosteroid, there is significant improvement in the lung function. And one other thing, the positive bronchial provocation test, जो कि अब हम लोग इतनी commonly perform नहीं करते, but sometimes we have to go for it if the other things are not suggested. तो one thing, एक चीज़ जिसके ऊपर current GINA guidelines पे बहुत ज़्यादा focus किया गया, highlight किया गया, that is the role of the biomarkers. अब biomarkers का जो है वो क्या है asthma के अंदर? तो the biomarkers help in the diagnosis of asthma, diagnosis में help करेंगे. दूसरा phenotyping of asthma. तो asthma जो है उसके अंदर अब बहुत सारे different जो है वो phenotypes हैं और the management जो asthma की है that is all phenotype based. So markers आपको phenotyping में भी help करते हैं. Third thing is the prognosis. Patient को जो है वो रिस्क ऑफ एक्सेसरबेशंस जो है वो कितना ज़्यादा है वो भी सारा बायोमार्कर्स पे डिपेंड करता है. एंड फोर्थ इज द सिलेक्शन ऑफ द एस्थमा ट्रीटमेंट. किसी पेशेंट को किस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए जो है हमें सेलेक्ट करना है ये भी सारा बायोमार्कर्स पे डिपेंड करता है. अब ये बायोमार्कर्स जो है वो कौन से हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह एक चीज़ जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है दैट इज़ फिनो. तो फिनो क्या है? फिनो इज दी फ्रैक्शनल एक्सेल नाइट्रस ऑक्साइड, यानी जो एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर वी चेक द लेवल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. तो फिनो लेवल जो है दैट इज मोर देन 50 ppb, ये इसका यूनिट होता है पार्टिकल्स पर बिलियन. सो इफ द फिनो लेवल्स आर मोर देन 50 or if the blood eosinophil count are above the reference range, तो ये वो पेशेंट्स हैं ये these things are highly suggestive of asthma. अब मार्कर्स हम कहाँ पे करवाएंगे? when patient with typical asthma symptom. पेशेंट के सिम्टम तो टिपिकल है asthma के, but spirometry is not confirmatory. ठीक है, तो अब फिर in that case हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? we will go for the biomarkers. However, biomarkers की कुछ अपनी लिमिटेशन है.
दे कैन बी, एक तो ये सेंसिटिविटी भी लैक करते हैं और स्पेसिफिसिटी भी लैक करते हैं, यानी ब्लड इजोनोफिल्स और फिनो लेवल और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर बढ़े हुए हो सकते हैं. वन थिंग लाइक अदर नॉन एलर्जी कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस. और दूसरी चीज़ ये कि लो लेवल्स जो है वो एस्थमा को रूल आउट भी नहीं कर सकते. तो they lack the sensitivity and specificity, but we do go for them. और उसकी क्या क्या यूटिलिटी है that I have already discussed. तो ये सारी चीज़ें keep in mind because जो हमारा क्विज है, क्विज के अंदर ये ही डिफरेंशियल एक्सपोजर और इसी तरीके से डिफरेंट कंडीशन है जिसमें ये लेवल्स लो भी होते हैं. अब फिनोटाइप्स जो है उसके अंदर क्या है, इफ द ब्लड इजोनोफिल काउंट इज मोर देन द अपर लिमिट, दिस इज कंसिस्टेंट विद इओसिनोफिलिक एस्थमा, या जिसको हम कॉमनली एलर्जिक एस्थमा कहते हैं. तो सारे फिनो द बायोमार्कर्स, इसके लिए वी नीड टू गो टू द स्टेप वाइज कंट्रोल ऑफ एस्थमा. I will be moving quickly to the asthma. Asthma का जो ट्रीटमेंट है that is not as very simple. ऐसा नहीं है कि एक एंटीबायोटिक रिजीम है वो इतने दिन तक चलाए एंड पेशेंट विल बी क्योर. तो इसका क्या होता है, दिस इज अ पर्सनलाइज्ड एस्थमा मैनेजमेंट, यानी हर पेशेंट इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल और जिसके अंदर हमें ट्रीटमेंट को सारी चीज़ें जो है ना ये इंटरलिंक्ड है. तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हमें आपस में जो है वो इंटरलिंक करके देन वी एडजस्ट द ट्रीटमेंट. तो पेशेंट लेवल डिसीजन भी होता है, पॉपुलेशन लेवल भी. पॉपुलेशन लेवल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कौन सी ड्रग है जो कि आपकी पॉपुलेशन को इजीली एक्सेसिबल है, आपके लोकल सर्कमस्टेंसेस के अंदर कौन सी ड्रग है जो इजीली अवेलेबल होगी, एक्सेसिबल होगी एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी. इसी तरीके से पेशेंट बेस सिलेक्शन भी होती है कि आपका पेशेंट कौन सी ड्रग इजीली अफोर्ड कर सकता है, उसकी चॉइस क्या है, वो कौन सी ड्रग जो है वो इनहेलर थेरेपी में कौन सी इनहेलर को फॉर एग्जांपल प्रेफर कर रहे हैं, क्या वो एमडीआई में ज़्यादा कंफर्टेबल है या वो डीबीआई के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो दिस इज कॉल्ड अ शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. तो चॉइस ऑफ इनहेलर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि पहली चीज़ कि आपके लोकल जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें वे अचीवेबल हो. ठीक है, वी डू नॉट हैव टू बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, हम ऐसे गोल सेट करें जो हम अचीव ही ना कर सकें. तो यही चीज़ एस्थमा के लिए भी अप्लाई होती है. एस्थमा के अंदर हमारे जो मेजर गोल्स हैं वो ये हैं कि पेशेंट शुड बी सिम्टम फ्री, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होने चाहिए. ठीक है, नो सिम्टम, नो डिस्टर्ब स्लीप, नो इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, दिस इज क्लियर. देन अबाउट द रिस्क, दूसरा जो हमारा जो है गोल होता है कि पेशेंट शुड नॉट हैव एनी एक्सेसरबेशन, पेशेंट शुड हैव अ नॉर्मल और स्टेबल लंग फंक्शन एंड ही शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकेशन एडवर्स इफेक्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. अब ये सारे जो है वो अगेन डिपेंड अपॉन द डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का जो है वो एज क्या है, कौन सी कोमॉर्बिडिटी है जो के साथ में मौजूद है, या एस्थमा का फिनोटाइप कौन सा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशंस. तो एस्थमा वी ऑल नो इज एस्थमा इज क्यूरेबल और नॉट, यस और नो. तो नो शुड बी लाउड. So asthma is not curable but it can be controlled. तो इसके अंदर फिर ये डिफरेंट साइकिल्स में चलता है. रिमिशंस भी होती हैं. रिमिशन जो है वो अगर चिल्ड्रन के अंदर होती हैं तो मोस्टली दे ओवरग्रो एस्थमा. इसी तरीके से अडल्ट के अंदर भी रिमिशन का एक फेज आता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल डिजीज. आपका पेशेंट एस्थमा वाला मे बी आपके पास आए, उसको मे बी सालों तक जो है ना कोई एपिसोड नहीं हुई. तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट कंट्रोल के अंदर वी हैव 4 पैरामीटर. डे टाइम सिम्टम्स ट्वाइस वीकली, एनी नॉक्टर्नल अवेकनिंग, क्योंकि एस्थमा के अंदर डे टाइम सिम्टम भी होते हैं और नाइट टाइम सिम्टम भी होते हैं. थर्ड इज द यूज ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसको हम कहेंगे साबा. तो पेशेंट को साबा रिलीवर की कितनी नीड पड़ रही है और इज देयर एनी फिजिकल लिमिटेशन और एक्टिविटी लिमिटेशन. तो ये चार जो सवाल
डिजीज या तो वेल कंट्रोल होगा या पार्टली कंट्रोल और अनकंट्रोल। सो वेल कंट्रोल्ड एस्थमा शुड नॉट हैव एनी ऑफ दीज। तो कोई डे टाइम सिम्टम नहीं होने चाहिए, नाइट टाइम सिम्टम नहीं होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी यूज ऑफ द साबा रिलीवर एंड देयर शुड नॉट बी एनी एक्टिविटी लिमिटेशन। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, इसके अंदर कोई ब्लाइंड चीज़ नहीं। तो हम कंट्रोल को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर विच आर एसोसिएटेड विद एस्थमा एक्सेसरबेशन। तो डॉक्टर नौशीन विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्ट टू ट्रीट एस्थमा एंड एस्थमा एक्सेसरबेशन। तो इसके लिए आई एम नॉट गोइंग। बहुत सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो एनीवन कैन टेल के एस्थमा के अंदर जो हम स्टेप वाइज मैनेजमेंट करते हैं, स्टेप 1 के अंदर क्या होता है? एनीवन? ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर के साथ सब लोग एग्री करेंगे और इज देयर एनी अदर थॉट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही हमारा मेजर गोल है जो हमें अचीव करना है आफ्टर टुडेज टॉक। तो हमने भी जब अपनी मेडिकल बुक्स पढ़ी थी और बहुत अरसे तक स्टेप 1 के अंदर क्या था, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और रिलीवर ओनली एज पर नीड, ऐसा ही था। मे बी आप लोगों की बुक्स में अभी तक इसी तरीके से लिखा हो। बट अब जो है वो जीना क्या कहती है? जीना ये कहती है कि जब भी एक पेशेंट शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लेगा उसके साथ इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी ज़रूर लेगा, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया कि वो पेशेंट जिनको बहुत इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स हो रहे थे बट उसके अंदर मोर्टेलिटी और एक्सेसरबेशंस का बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो हाई था। तो रिलीवर जो है दैट विल जस्ट रिलीव द सिम्टम, बट एस्थमा के अंदर वी नीड टू कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन। तो इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द थेरेपी। तो अब स्टेप 1 के अंदर क्या है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट विद इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड एज पर नीड। दोनों ही होंगे एज पर नीड बट नॉट जस्ट अ रिलीवर। सो ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा विद शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ये जीना की एक फंडामेंटल जो है वो चेंज है। अगर आप लोग ट्रैक 1 और ट्रैक 2 को यहाँ से समझ के जाते हैं तो मेरे ख्याल से जो मेरा गोल है ना वो अचीव हो गया। तो अब ये जो स्टेप वाइज मैनेजमेंट है नाउ दैट हैज चेंज। इसके अंदर वी हैव 2 ट्रैक्स। अगर आप लोगों को एक भी चीज़ समझ आ जाती है तो दैट विल बी इनफ, क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इज जूनियर डॉक्टर्स। स्टेप 1 एंड 2 के अंदर वी विल यूज कंट्रोलर एंड रिलीवर। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इज योर रिलीवर एंड ICS और इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड इज द कंट्रोलर। तो एयर होने का क्या मतलब है? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर। देयर आर सर्टेन ब्रोंकोडायलेटर्स, जैसे सैल्ब्यूटामॉल है। सैल्ब्यूटामॉल इज शॉर्ट एक्टिंग, तो वो जस्ट रिलीवर है। बन गया हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। एयर मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है और कुदरत की जिस तरह मैडम ने कहा बेसिक्स ऑफ अस्थमा, एयर इज बेसिक्स ऑफ लाइफ। सो हर पेशेंट के पास एक रिटन एस्थमा एक्शन प्लान होना चाहिए, जैसे डॉक्टर साइमन ने काफ़ी डिटेल में बताया ट्रैक 1 ट्रैक 2 के बारे में। ये जो प्लान है इसमें आपने बेसिकली ये जो सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और लैंग्वेजेस में भी इसको ट्रांसलेट किया है, ये हर पेशेंट के पास होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, डेली पेशेंट ने खुद असेस करना है पीक फ्लो अपना और अपने सिम्टम्स। अगर वो ग्रीन उसमें फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो उसको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया हुआ वही कंटिन्यू करें, ही इज वेल टू गो ऑन दैट ट्रीटमेंट। इसी तरह फिर येलो में दिस डज नॉट नीड अर्जेंट केयर, लेकिन एक फॉलो अप विजिट जरूरी है डॉक्टर के पास, जो उसका रूटीन फॉलो अप है उससे पहले।
he may go to a doctor in few days, 2 to 3 days time. लेकिन अगर उसके सिम्टम्स रेड पोर्शन में फॉल कर रहे हैं तो उसको अर्जेंटली इमरजेंसी विजिट करना है, और उस अर्जेंसी के साथ उसमें जो मेडिसिन भी लिखे हुए कि घर पे बिफोर कमिंग टू हॉस्पिटल उसमें क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली शॉर्ट एक्टिंग जो रेगुलर मेडिसिन है ना, वो उसको वहीं पे डोज, ये पेशेंट के पास लिखा हुआ होगा, वो रोज असेस करेगा, रोज उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने एस्मा को मैनेज कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, रेड चार्ट बार के अंदर आएगा, उसको हो सकता है कुछ दिन तक पता ही नहीं चलेगा कि उसको जो कॉफ हो रही है, इंक्रीजिंग कॉफ है, उसको ट्रीटमेंट चेंज की ज़रूरत है या अर्जेंट विजिट की ज़रूरत है। ये वो पेशेंट्स हैं जो आपके पास ईआर में प्रेजेंट कर गए एज़मा एक्सेसरबेशन के। सो एज़मा एक्सेसरबेशन जो एक्यूट मॉडरेट एज़मा एक्सेसरबेशन है, उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का विल बी 25 to 30 के बीच में, हार्ट रेट लेस देन 110 है। ये पेशेंट में सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे होंगे, क्लिनिकल साइंस की इतनी वर्सनिंग नहीं होती है, वीज होगा, वो नॉर्मली एस्मा पेशेंट आपको मिल जाएगा। पीक फ्लो अगर डिवाइस है आपके पास, आपने असेस किया है पेशेंट को, अपना पीक फ्लो पहले से पता था, तो उससे I am just a student. एयर मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, और कुदरत की जिस तरह मैडम ने कहा बेसिक्स ऑफ अस्थमा, एयर इज बेसिक्स ऑफ लाइफ। अगर एयर नहीं है देन योर लाइफ इज नो वेयर, चाहे आप कहीं पे भी हो, समंदर में हो, ज़मीन पे हो, खला में हो, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड वाटर on the earth and air everywhere. If you go anywhere in oceans, on skies, the air is there. So there is a strong and growing body of evidence linking air pollution and asthma. Sometimes it is called asthma also, so we pronounce it asthma both. And it is a quality of life. It is not only cure, it is not only the diagnosis, but it is a quality of life. So whenever you are suffering from even minor ailment, I will be talking about the pathophysiology and the principles of management of asthma. So I will be going briefly because I know there are many other talks to follow. तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि what are the symptoms that are suggestive of asthma. तो सबसे की जो चीज़ है that is the diagnosis. उसके अंदर सबसे important is the history. So what are the key features in the history? There is history of wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough. And typically these symptoms are variable. तो सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? So the first and most important is the history of variable respiratory symptom. अब variable का क्या मतलब है? That these symptoms अगर variably, इनकी जो frequency and intensity it does not remain the same, तो वो चेंज होती रहती है। ठीक, सिम्टम अगर वेरिएबली ओवर टाइम, सिम्टम्स आर ऑफन वर्स एट द नाइट टाइम, सिम्टम्स आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय एक्सरसाइज एंड सिम्टम्स ऑफन अपीयर और वर्सन विद द वायरल इन्फेक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द वेरिएबल रेस्पिरेटरी सिम्टम. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्पायरोमीट्री इन एस्थमा, बट हम सब चूँकि जो है वो वी आर मेडिकल डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को हम लोग एस्थमा में वी गिव ओवरव्यू ऑफ द लंग फंक्शन टेस्टिंग. तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्थमा? दैट देयर इज एक्सेसिव वेरिएबिलिटी इन द लंग फंक्शन. तो ना सिर्फ सिम्टम्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, बट द लंग फंक्शन इज आल्सो वेरिएबल. तो उसके अंदर देयर आर डिफरेंट थिंग्स. आई एम श्योर डॉक्टर कामरान विल बी गोइंग थ्रू दैट, तो मैं उसकी ज़्यादा जो है वो डिटेल्स में नहीं जा रही. तो उसके भी 4-5 जो है वो पैरामीटर हैं. सबसे पहली चीज़, देयर इज ऑब्स्ट्रक्टिव impairment in the respiratory function, then there is a positive bronchodilator response, and there is excessive variability in the peak expiratory flow as well. Along with that, if we
start patient on the inhaled corticosteroid, there is significant improvement in the lung function. And one other thing, the positive bronchial provocation test, जो कि अब हम लोग इतनी commonly perform नहीं करते, but sometimes we have to go for it if the other things are not suggested. वन थिंग, एक चीज जिसके ऊपर करंट जीना गाइडलाइंस में बहुत ज्यादा फोकस किया गया, हाईलाइट किया गया, दैट इज द रोल ऑफ द बायोमार्कर्स. अब बायोमार्कर्स का जो है वो क्या रोल है एस्थमा के अंदर? तो the biomarkers help in the diagnosis of asthma, diagnosis में हेल्प करेंगे. दूसरा phenotyping of asthma. तो एस्थमा जो है उसके अंदर अब बहुत सारे डिफरेंट जो है वो फिनोटाइप्स हैं और द मैनेजमेंट जो एस्थमा की है दैट इज ऑल फिनोटाइप बेस्ड. सो मार्कर्स आपको फिनोटाइपिंग में भी हेल्प करते हैं. थर्ड थिंग इज द प्रोग्नोसिस. पेशेंट को जो है वो रिस्क ऑफ एक्सेसरबेशंस जो है वो कितना ज़्यादा है वो भी सारा बायोमार्कर्स पे डिपेंड करता है. एंड फोर्थ इज द सिलेक्शन ऑफ द एस्थमा ट्रीटमेंट. किसी पेशेंट को किस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए जो है हमें सेलेक्ट करना है, ये भी सारा बायोमार्कर्स पे डिपेंड करता है. अब ये बायोमार्कर्स जो है वो कौन से हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह एक चीज़ जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है दैट इज फिनो. तो फिनो क्या है? फिनो इज दी फ्रैक्शनल एक्सेल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, यानी जो एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर वी चेक द लेवल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. तो फिनो लेवल जो है दैट इज मोर देन 50 ppb, ये इसका यूनिट होता है पार्टिकल्स पर बिलियन. सो इफ द फिनो लेवल्स आर मोर देन 50 or if the blood eosinophil count are above the reference range, तो ये वो पेशेंट्स हैं ये these things are highly suggestive of asthma. अब मार्कर्स हम कहाँ पे करवाएंगे? when patient with typical asthma symptom. पेशेंट के सिम्टम तो टिपिकल है एस्थमा के, बट स्पायरोमेट्री इज नॉट कंफर्मेटरी. तो अब फिर इन दैट केस हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? वी विल गो फॉर द बायोमार्कर्स. However, बायोमार्कर्स की कुछ अपनी लिमिटेशन है. दे कैन बी, एक तो ये सेंसिटिविटी भी लैक करते हैं और स्पेसिफिसिटी भी लैक करते हैं, यानी ब्लड इजोनोफिल्स और फिनो लेवल और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर बढ़े हुए हो सकते हैं. वन थिंग लाइक अदर नॉन एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस. और दूसरी चीज़ ये कि लो लेवल्स जो है वो एस्थमा को रूल आउट भी नहीं कर सकते. तो they lack the sensitivity and specificity, but we do go for them. और उसकी क्या क्या यूटिलिटी है that I have already discussed. तो ये सारी चीज़ें keep in mind because जो हमारा क्विज है, क्विज के अंदर ये भी डिफरेंशियल एक्सपोजर और इसी तरीके से डिफरेंट कंडीशन है जिसमें ये लेवल्स लो भी होते हैं. अब फिनोटाइप्स जो है उसके अंदर क्या है? इफ द ब्लड इजोनोफिल काउंट इज मोर देन द अपर लिमिट, दिस इज कंसिस्टेंट विद इजोनोफिलिक एस्थमा, या जिसको हम कॉमनली एलर्जिक एस्थमा कहते हैं. तो सारे फिनो द बायोमार्कर्स, इसके लिए वी नीड टू गो टू द स्टेप वाइज कंट्रोल ऑफ एस्थमा. I will be moving quickly to the asthma. Asthma का जो ट्रीटमेंट है that is not as very simple. ऐसा नहीं है कि एक एंटीबायोटिक रिजीम है वो इतने दिन तक चलाए एंड पेशेंट विल बी क्योर्ड. तो इसका क्या होता है? दिस इज अ पर्सनलाइज्ड एस्थमा मैनेजमेंट, यानी हर पेशेंट इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल और जिसके अंदर हमें ट्रीटमेंट को सारी चीज़ें जो है ना ये इंटरलिंक्ड है. तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हमें आपस में जो है वो इंटरलिंक करके देन वी एडजस्ट द ट्रीटमेंट. तो पेशेंट लेवल डिसीजन भी होता है, पॉपुलेशन लेवल भी. पॉपुलेशन लेवल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कौन सी ड्रग है जो कि आपकी पॉपुलेशन को इजीली एक्सेसिबल है. आपके लोकल सर्कमस्टेंसेस के अंदर कौन सी ड्रग है जो इजीली अवेलेबल होगी, एक्सेसिबल होगी एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी. इसी तरीके से पेशेंट बेस सिलेक्शन भी होती है कि आपका पेशेंट कौन सी ड्रग इजीली अफोर्ड कर सकता है, उसकी चॉइस क्या है, वो कौन सी ड्रग जो है वो इनहेलर थेरेपी में कौन सी इनहेलर को फॉर एग्जांपल प्रेफर कर रहे हैं. क्या वो एमडीआई में ज़्यादा कंफर्टेबल है या वो डीबीआई के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो दिस इज कॉल्ड अ शेयर्ड डिसीजन मेकिंग.
तो चॉइस ऑफ इनहेलर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि पहली चीज़ कि आपके लोकल जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें वे अचीवेबल हो, ठीक है। वी डू नॉट हैव टू बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, हम ऐसे गोल सेट करें जो हम अचीव ही ना कर सकें। तो यही चीज़ एस्थमा के लिए भी अप्लाई होती है। एस्थमा के अंदर हमारे जो मेजर गोल्स हैं वो ये हैं कि पेशेंट शुड बी सिम्टम फ्री, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होने चाहिए, ठीक है। नो सिम्टम, नो डिस्टर्ब स्लीप, नो इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। दिस इज क्लियर। देन अबाउट द रिस्क, दूसरा जो हमारा जो है गोल होता है कि पेशेंट शुड नॉट हैव एनी एक्सेसरबेशन, पेशेंट शुड हैव अ नॉर्मल और स्टेबल लंग फंक्शन एंड ही शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकेशन एडवर्स इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। अब ये सारे जो है वो अगेन डिपेंड अपॉन द डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल पेशेंट का जो है वो एज क्या है, कौन सी कोमॉर्बिडिटीज है जो के साथ में मौजूद है, या एस्थमा का फिनोटाइप कौन सा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशंस। तो एस्थमा वी ऑल नो इज एस्थमा इज क्यूरेबल और नॉट, यस और नो? तो नो शुड बी लाउड। So asthma is not curable but it can be controlled। तो इसके अंदर फिर ये डिफरेंट साइकिल्स में चलता है, रिमिशंस भी होती हैं। रिमिशन जो है वो अगर चिल्ड्रन के अंदर होती हैं तो मोस्टली दे ओवरग्रो एस्थमा। इसी तरीके से अडल्ट के अंदर भी रिमिशन का एक फेज आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल डिजीज। आपका पेशेंट एस्थमा वाला मे बी आपके पास आए, उसको मे बी सालों तक जो है ना कोई एपिसोड नहीं हुई, तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट कंट्रोल के अंदर वी हैव 4 पैरामीटर, डे टाइम सिम्टम्स ट्वाइस वीकली, एनी नॉक्टर्नल अवेकनिंग, क्योंकि एस्थमा के अंदर डे टाइम सिम्टम भी होते हैं और नाइट टाइम सिम्टम भी होते हैं। थर्ड इज द यूज ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसको हम कहेंगे साबा। तो पेशेंट को साबा रिलीवर की कितनी नीड पड़ रही है और इज देयर एनी फिजिकल लिमिटेशन और एक्टिविटी लिमिटेशन। तो ये 4 जो सवाल है ये हम पेशेंट से पूछेंगे। तो वेल कंट्रोल्ड एस्थमा इज द टारगेट। एस्थमा कंट्रोल वाइज वी क्लासिफाई इन 3 कैटेगरीज, या तो वेल कंट्रोल होगा या पार्टली कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड। सो वेल कंट्रोल्ड एस्थमा शुड नॉट हैव एनी ऑफ दीज। तो कोई डे टाइम सिम्टम नहीं होने चाहिए, नाइट टाइम सिम्टम नहीं होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी यूज ऑफ द साबा रिलीवर and there should not be any activity limitation। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, इसके अंदर कोई ब्लाइंड चीज़ नहीं। तो हम कंट्रोल को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। So there are certain factors which are associated with asthma exacerbation। तो डॉक्टर नौशीन will be talking about the difficult to treat asthma and asthma exacerbation। तो इसके लिए आई एम नॉट गोइंग। बहुत सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो एनीवन कैन टेल के एस्थमा के अंदर जो हम स्टेप वाइज मैनेजमेंट करते हैं, स्टेप 1 के अंदर क्या होता है? एनीवन ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर के साथ सब लोग एग्री करेंगे और इज देयर एनी अदर थॉट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही हमारा मेजर गोल है जो हमें अचीव करना है आफ्टर टुडेज टॉक। तो हमने भी जब अपनी मेडिकल बुक्स पढ़ी थी और बहुत अरसे तक स्टेप 1 के अंदर क्या था, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और रिलीवर ओनली एज पर नीड, ऐसा ही था। मे बी आप लोगों की बुक्स में अभी तक इसी तरीके से लिखा हुआ हो। बट अब जो है वो जीना क्या कहती है, जीना ये कहती है कि जब भी एक पेशेंट शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लेगा उसके साथ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी ज़रूर लेगा, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया कि वो पेशेंट जिनको बहुत इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स हो रहे थे बट उसके अंदर मोर्टेलिटी और एक्सेसरबेशंस का बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो हाई था। तो रिलीवर जो है दैट विल जस्ट रिलीव द सिम्टम, बट एस्थमा के अंदर वी नीड टू कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन। तो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द थेरेपी। तो अब स्टेप 1 के अंदर क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट
पर नीड, दोनों ही होंगे एज पर नीड बट नॉट जस्ट अ रिलीवर. So treatment of asthma with short-acting bronchodilator is no longer recommended. ये जीना की एक फंडामेंटल जो है वो चेंज है. अगर आप लोग ट्रैक 1 और ट्रैक 2 को यहाँ से समझ के जाते हैं तो मेरे ख्याल से जो मेरा गोल है ना वो अचीव हो गया. तो अब ये जो स्टेप वाइज मैनेजमेंट है नाउ दैट हैज चेंज. इसके अंदर वी हैव 2 ट्रैक्स. अगर आप लोगों को एक भी चीज़ समझ आ जाती है तो दैट विल बी इनफ, क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इज जूनियर डॉक्टर. स्टेप 1 एंड 2 के अंदर वी विल यूज कंट्रोलर एंड रिलीवर. तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इज योर रिलीवर एंड ICS और इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड इज द कंट्रोलर. तो एयर होने का क्या मतलब है? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर. देयर आर सर्टेन ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे सैल्ब्यूटामॉल है. सैल्ब्यूटामॉल इज शॉर्ट एक्टिंग, तो वो जस्ट रिलीवर है. तो यहाँ पे माय टॉक इज फिनिश्ड, लेकिन आई वांट टू नो कि ट्रैक 1